आपकी पे। So for question number one, when the bases are same, powers will get added. So a raised to the power 7 plus 4, which will give you a raised to the power 11. So a raised to the power 11 will be the answer. For part B, we have w raised to the power 15 divided by w raised to the power 3. So it will be written as w15 divided by w3 when the bases are same और denominator में मेरे पास होगा तो जो आपके पास 3 है when it will comes in the numerator it will change its sign so it will be 15 minus 3 will give you answer w raised to the power 12. Now we have part C. In part C it says you have to simplify. इसका मतलब ये है कि आपने जो है सबसे पहले हमने रूल ये सीखा था कि when we have 8x5 y raised to the power 3 होल स्क्वायर जब भी पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता है या पूरी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर होती है तो आप इंडिविजुअली हर टर्म के साथ जो है वो पावर अप्लाई करते हो सो इफ वी हैव स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट तो हर नंबर के साथ हर टर्म के साथ ये स्क्वायर अलग से अप्लाई होगा लाइक दिस. सो आंसर हो जाएगा बेटा 8 स्क्वायर इज 64 एक्स. अच्छा अब यहाँ पे हमने इंडेक्सेस में एक चीज देखी थी when the power is being multiplied with the other power it will give you 5 into 2 is 10 and then y power into power will again multiply 3 into 2 is 6 so final answer is 64 x raised to the power 10 y raised to the power 6 आपके पास यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा. Now we have part D में कहता है you have to make t as a subject that means first of all 8v को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया इट विल बी टी क्यूब देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी वी हैव टू अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस. सो ये तो कैंसिल हो जाएगा सो फाइनल आंसर ऑफ टी इज क्यूब रूट ऑफ c plus 8v. That will be the answer. Daniel, Gabriel and Hadley share some money in the ratio of 3, 5 and 9. So ये मेरे पास जो है this is basically the ratio. If we talk about the money, we don't know the exact value. So we can write it 3x, 5x and 9x. These are the values. So the difference between the amount of money that Gabriel receives and the amount of money that Hadley receives is 196. Difference means we have to subtract both of them. So it will be 9x minus 5x and it will give you answer 190. So it's 4x equals 196. So to calculate the value of x, we need to divide 4 by 196. So it will be 196 divided by 4 will give you answer 49. Right? Now, 49, they ask you to find out the value of Daniel. So it will be 3x, which means 3 into 49. So 49 times 3 will give you answer वन फोर्टी 147 euros. Exactly. So that will be your answer. So part 3 की बात करते हैं. Part 3 में कहते हैं we have a right angle triangle work out in the length of AB. So that means if we talk about the angle, if we consider the angle 65 and the side opposite to this one is known as opposite and this is your hypotenuse because this side is opposite to 90 degrees. 90 degree के सामने वाली side को hypotenuse कहते हैं. So we have the combination of sine theta which is opposite over hypotenuse. So that means sine 65 is equals opposite over hypotenuse which is 8.4. So finally we will be having the answer which is sine 65 multiply by 8.4. 7.6 7.61. That will be your final answer. Right? And they ask you to write down the answer in the form of सिग्निफिकेंट फिगर थ्री 36. सिग्निफिकेंट फिगर तो वो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 7.61 हो जाएगा. अच्छा इसके आगे भी अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है तो आप उसे इग्नोर करोगे और उस लेट से कि मैं ये कहता हूं मेरे पास वैल्यू थी 7.608. अब इन्होंने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपसे बोला था तो आप क्या करोगे थ्री थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब है इसके बाद वाला जो नंबर है राउंड ऑफ हो जाएगा सो इट विल गिव यू 7.61. लेट्स से कि अगर मेरी वैल्यू आ रही थी 7.6124 तो अब मेरे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो ये तीन वैल्यूज होंगी और वन के बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो वी हैव टू राइट डाउन 7.61. तो दोनों केसेस में आंसर जो है वो 7.61 ही आएगा
क्योंकि उन्होंने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले थे, लेकिन सिनेरियोज डिफरेंट आपके पास हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। The percentage profit is 44%. अच्छा, आपसे कहता है सारा मेक्स एंड सेल्स मग्स, वन डे शी मेक्स 150 मग्स, her total cost for making these mugs in 1140, right? Of these mugs, two over five are small mugs, 32% are medium mugs, and the rest are large mugs, right? ठीक है। तो अब आपने जो है वो क्या कहता है, 2/5 आर स्मॉल मग्स, तो इसका मतलब यह है कि 2/5 ऑफ द टोटल मग्स, दैट इज 150 ओवर हियर। सबसे पहले मैंने ये काम करना है। तो अब अगर इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 60. 60 आपके पास आ गए। ठीक है, यानी 60 मग्स वो हैं जो स्मॉल है मेरे पास। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, 32% आर द मीडियम मग्स, इसका मतलब ये है कि 32/100 ऑफ 150 विच इज इक्वल्स टू 48, यानी 40. 48 मग्स मेरे पास वो हैं जो आपके पास कौन से मीडियम साइज के मग्स हैं। राइट। अब टोटल मेरे पास अगर 150 थे, और 150 में से अगर मैं 60 और 48 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ मग्स विच आर लार्ज। राइट। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है? 42। 42. 42 मग्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सही। अब उसने कहा कि आपने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपने जितने मग्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उससे उसे मल्टीप्लाई करोगे। तो स्मॉल की जो कॉस्ट थी वो आपके पास कितनी थी बेटा? 60 थी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज 60 टाइम्स 8.5, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5 times. उसके बाद आपके पास 48 को किससे करना है आपने? 11.20 से। ये मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा, और 48 को मीडियम हो गया, और 42 जो है वो लार्ज है, दैट इज 14.20। सो 42 इंटू 14.20 आपने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है। जब आप इन सब को एड अप करोगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है? 1644। ये आपके पास वैल्यू आ गई। सही है। अब आपने ओल्ड वैल्यू जो आपके पास थी तमाम मग की जो कॉस्ट कर रही थी, दैट इज 1140। अब क्योंकि उसने कहा कि परसेंटेज प्रॉफिट बताने, तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आपके पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। करेक्ट। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स। 44. करेक्ट। अच्छा, ये जो हमारे पास है, इसको अगर आप चेक करते हो तो ये आंसर है 1644 -1140, विच इज 504। सो 504 डिवाइडेड बाय 1140 विल गिव यू 0.44। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू गेट द आंसर इन द परसेंटेज फॉर्म। तो ये आपके पास 44% फिर आएगा। ठीक है, जीरो, वरना सिर्फ आप इस पार्ट को सिर्फ सॉल्व करते हो तो यूल गेट द आंसर ऑफ 0.44। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, यूल गेट द आंसर इन परसेंटेज विच इज 44%। Jenny has six cards. Each card has a whole number written on it, so that the smallest number is 5, which is written. The large number is 24. The median of six numbers is 14, and the mod of the six numbers is 8. We know the definition of a mod, a number which is the most repeated among the quantity, among all the numbers जो भी arranged आपके पास हैं, या अरेंज ना भी हो तो, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो मॉड कहलाता है। लेकिन उसमें उसने ये कहा है कि जेनी अरेंज हर कार्ड सो दैट नंबर्स आर इन ऑर्डर, यानी ये मेरे पास ऑर्डर में नंबर्स ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब है अगर 8 मॉड है तो 8 जो है वो कम से कम भी 2 दफा आया होगा, क्योंकि हर नंबर एक दफा है तो वो मॉड नहीं कहलाता, एक से ज्यादा दफा होगा तो वो मॉड कहलाएगा। सो ये मेरे पास 2 दफा हो गया मॉड। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये उन्होंने हिंट दिया, द मीडियन ऑफ द सिक्स नंबर्स इज 14, दैट मींस वी नो द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, दैट इज n+1 डिवाइड बाय टूथ। सही है। अब ये जो एन मेरे पास है, ये हम जब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते पोजीशन को, जब तक हमारे पास एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे उसने 14 दे दिया। सो बेसिकली 14 इज, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, सिक्स नंबर्स हैं, तो 5 पोजीशन पे जो आपके पास होगा दैट विल बी योर 14। ये आपके पास 14 नंबर, इट्स नॉट द पोजीशन। तो अगर 14 नंबर मेरे पास यहाँ पर है, सो इट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ दीज टू, इफ आई नेम इट एज वाई, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा 8 + y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 14, विच इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ मिडिल टर्म। तो अगर 14 मेरे पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो दोनों को एड अप करूंगा लेफ्ट एंड राइट नंबर्स का, डिवाइड बाय 2 टू गेट द आंसर। तो मेरा जो आंसर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 14 into 2 which is equals to 20.
28 माइनस 8 एंड द आंसर इज इक्वल्स 20। तो y का जो आंसर है वो 20 है, यानी y जो है वो मेरे पास यहाँ पे 20 के बराबर है। अब वो ये कहता है, मेरे पास यहाँ पे ये सारी बात हो गई, उसके बाद आपके पास ये जो 20 और 24 है, इसके बीच में उसने कुछ डिफाइन नहीं किया, ना कोई कंडीशन दी है। सो वी कैन अज्यूम कि 20 से 24 के बीच में आपके पास जो है जो भी नंबर्स होंगे वो इस प्लॉट पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी ऑफ द नंबर, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप कोई अल्फाबेट से इसे डिनोट कर दो। लेट से मैं ये कह देता हूँ ये ए है। अब ए की जगह हम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि वो आपके पास जो है वो इन बिटवीन 20 एंड 24 आपके पास होगा। सो वी कैन राइट इट, the value of A is equals, or the value of A will lie in between 20 and 24। इसके बीच की कोई वैल्यू आपके पास होगी जो आप यहां पे लिख सकते हो। यू कैन नॉट राइट 20, यू कैन नॉट राइट 24, ये आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट में कंफ्यूजन ही होती है कि सर क्या 20 और 24 भी लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। रीजन ये है कि अगर मैं 20 या 24 दोबारा लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि मैंने मॉड की जो कंडीशन 8 है वो हमने खराब कर दी, गलत कर दी, तो वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू जो है लेकिन वो या देखो, तो 21, 22, 23, ये वैल्यूज आपके पास जो है वो हो सकती। Okay, now we have part B. A basketball team plays 6 games. After playing 5 games, the team has a mean score of 21. 21 per game. After playing 6 games, the team has a mean score of 23 points per game. ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 5 गेम्स आपके पास हैं, तो हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? मीन इज इक्वल्स सम ओवर टोटल नंबर्स। So if we are talking about 5 games and the mean score is 21 times 5 हो जाएगा, we will have the answer of sum of 5. So it will be 105, that is equals to S5. अभी आपके पास after playing 6 games the team mean score is 23. So mean is sum over numbers, that means 23 is the mean of टोटल नंबर्स कितने? 6। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी हैव S6 सम ऑफ द 6 स्कोर्स। सो इट विल बी 138। S6 हो गया 138 आपके पास, सही है। अब आपने क्या किया? आस्क यू टू फाइंड आउट द सिक्स्थ गेम, स्कोर ऑफ द सिक्स गेम। सो S6 माइनस S5 आप करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट स्कोर आ जाएगा, विच इज 138 माइनस 105, विच इज इक्वल्स टू 33। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5x लेस देन इक्वल्स 2 प्लस 7 विच इज 9। तो x इज लेस देन इक्वल्स 9 ओवर 5। नेक्स्ट वी हैव पार्ट बी। पार्ट बी बेटा हमारे पास फैक्टराइजेशन है। यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, आपने सिंपल फैक्टराइज ही करना है। सो वी हैव 7 into 5 विच इज 35 एंड 7 minus 5 will give you 2। सो इट विल बी y square minus 7y plus 5y minus 35। So if you take y common it will be y minus 7 plus 5 common आप ले लोगे, it will be y minus 7 again। तो आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, y minus 7 and y plus 5। So these are your factors. Now we have the last one। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन है और सॉल्व का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना है। जो आपके पास दो ब्रैकेट्स आए हैं इनको आपने वन बाय वन जीरो से इक्वेट करवाना है। यू विल बी हैविंग द आंसर y इज इक्वल्स 7 एंड y इक्वल्स -5। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपके पास सेट्स एंड वेन डायग्राम है। इसमें आपने आपको a इंटरसेक्शन b दिया है, दैट मीन्स कॉमन 5, 10 एंड 15, ये तो आपके पास कॉमन हो गया। उसके बाद कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ बी। अच्छा, अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस बी, दैट इज योर बी कॉम्प्लीमेंट। यानी यूनिवर्सल में से मैं अगर बी को माइनस कर दूं, बी को हटा दूं, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, सही है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो आप वो नंबर्स आइडेंटिफाई करो जो आपके पास बच गए, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे जो है वो ये बी कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर मुझे जो है वो इसको मैं एड अप करता हूँ यूनिवर्सल के साथ, तो मेरे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो सिंपल क्या हैं? बी के हैं। यानी यूनिवर्सल में से सिंपल आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, तो आपके बी के नंबर्स पता चल जाएंगे आपको। तो बी के नंबर्स कौन कौन से हैं जो अभी बचे हुए हैं? जो अभी बचे हुए हैं वो नंबर्स देखते हैं। ये देखो 7, इसमें से आपके पास 7, 8, 9, 11, 7, 8, 9, उसके बाद 11, 12, 13, 14, ये नंबर्स आपके पास हट हट गए। अगर ये नंबर्स हट गए तो बी का जो चांस आपके पास है
तो अब जो मेरे पास बी का चांस है वो आपके पास 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 10 का हो सकता है और 15 का हो सकता है। अब 15 ऑलरेडी आपके पास कॉमन पॉइंट है, तो सिर्फ बी में ये नहीं आ सकता, ये भी रिमूव आपके पास हो गया, और 10 भी आपके पास यहां से जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर ये भी मेरे पास रिमूव हो गया तो मेरे पास तीन का ऑप्शन बचता है, वो तीन ऑप्शंस कौन से हैं, 4, 5 एंड 6। अब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बल्कि हम ए कॉम्प्लीमेंट को भी चेक करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया है, दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मुझे ए सिंपल चाहिए तो मैं यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूंगा। अब अगर मैं यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करता हूं तो मेरे पास कौन कौन से माइनस हो रहे हैं, 4, 6, ये दोनों हमारे पास माइनस हो गए। उसके बाद आपके पास 7 माइनस हो रहा है, आपके पास 8 माइनस हो रहा है, और आपके पास 14 माइनस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक चीज जज करनी है, वो ये कि मेरे पास ए के लिए जो वैल्यूज बच गई वो कौन कौन सी हैं। वो आपके पास जो है वो 5 है, वो आपके पास 9 है, वो आपके पास 10 है, देन यू हैव 11, 12, 13 और 15, ये आपके पास है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है वो स्मार्टली वर्क करते हैं और एक चीज को चेक करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 15 ऑलरेडी आपके पास कॉमन है दोनों के अंदर, ये नहीं हो सकता। 10 ऑलरेडी आपके पास कॉमन है, ये नहीं हो सकता। 5 ऑलरेडी आपके पास कॉमन है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो नंबर्स आपके पास ए के लिए बच गए जो हम लिख सकते हैं, जो ऑप्शंस है वो कौन से, 9, 11, 12, 13, ये मेरे पास नंबर्स हैं। ठीक है। अब देखो ये आपके पास किसके नंबर्स आ गए, ए के नंबर्स हैं मेरे पास, 9, 11, 12, 13, ये ए के पता चल गया। 4, 5 एंड 6 आपके पास कौन से हैं, बी के नंबर्स हैं। अब इसके अंदर से ये जो 5 है ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये भी आपके पास कॉमन है। तो जो दो नंबर्स आपके पास बचे वो आपके बी के हो गए, दैट इज 4 एंड 6। और ए के अंदर जो नंबर आपके पास बचे दैट इज 9, 11, 12 एंड 13, ये आपके पास हो गए। अब इन सारे नंबर्स में से आपने वो नंबर्स चूज करने हैं जो ए और बी के तमाम सेट्स में आ चुके हैं, लेकिन ऐसे भी नंबर्स अभी बचे हुए हैं जो आपके पास इन दोनों सेट्स में यूज नहीं हुए। वो कौन से आपके पास नंबर्स हैं, वो आपके पास हैं 7, ये आपके पास यूज नहीं हुआ कहीं भी, ए बी में और ना इंटरसेक्शन में। उसके बाद आपके पास और कौन सा नंबर है जो यूज नहीं हुआ है, 8, ये आपके पास यूज नहीं हुआ, और एक नंबर आपके पास है 14। ये तीन ऐसे नंबर्स हैं जो अभी भी आपके पास जो है वो यूज नहीं हुआ है, ना ए में यूज हुआ, ना ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें भी यूज नहीं हुआ, और ना बी के सेट में यूज हुआ है। सो इसका मतलब है ये आपके पास आउटसाइड है। सो 7, 8 एंड 14 आर द आंसर फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये उसका आंसर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है ए मल्टीप्लाई बाय बी है, यानी ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर ये होता है व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल गेट एडेड। तो इसका मतलब है कि बेसिस जो है वो सेम है 10 की, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -24 + 145, ये क्या हो जाएंगी आपके पास, एडअप हो जाएगा। सही है। और उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास सिंपल आ जाएगा। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 4.2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 2 12.6 आ गया। 12.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 121, ये मेरे पास हो गया। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आंसर को लिखना है, इसका मतलब ये डेसिमल मेरा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, एंड व्हेन द डेसिमल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल इंक्रीज द पावर, बढ़ा देता है। सो इट्स 1.26 इंटू 10 रेज टू द पावर 122, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। The diagram shows the isosceles triangle. Isosceles triangle वो triangle होता है जिसकी दो sides बराबर होती हैं. So if we draw a vertical line like this and make the two angles of 90 degrees, तो आपके पास जो है ये हाफ और हाफ हो जाएगा, which will be 14 and 14, ये हो जाएगा 14 and 14 सेंटीमीटर, राइट। अब मैंने जो है वो फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले, पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये जो लेंथ मेरे पास है जो मैंने वर्टिकल ड्रॉ की है, जिसे मैं कह देता हूँ ए और डी, ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, या इसको ऐसे कर लो, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ए डी स्क्वायर इक्वल्स 17.5 स्क्वायर -14 स्क्वायर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। सही। हाइपोटेन्यूज माइनस आप जो है वो एडजस्टमेंट करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स ए डी आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्क्वायरिंग की, तो ये हो जाएगा 110.25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। और अब अगर जो है वो स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगाएंगे लाइक दिस टू गेट द आंसर ऑफ एडी, जो आपके पास आ जाएगा 10.
अप्रोक्स 5। ये आपके पास एडी की वैल्यू आ गई। अब एडी की ये जो वैल्यू आई है, मुझे जो है वो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अगर चाहिए होता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस आपके पास क्या है? जी। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10.5। 10.5। तो आंसर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? एरिया इक्वल्स, अच्छा, ये तो आपके पास हो जाएगा 0.5 टाइम्स 14 टाइम्स 10.5, सॉरी, 0.5 टाइम्स 14 टाइम्स 73.5। 10.5 विच इज इक्वल्स 73.5। 73.5 ये आपके पास हाफ जो है वो ये वाली जो साइड थी ए बी डी इसका है। मुझे पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का चाहिए। आई कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली बाय 2 टू गेट द आंसर ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 147। 73.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट इज मस्ट, यूनिट जरूर लिखना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। द स्ट्रेट लाइन एल हैज एन इक्वेशन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। सिंपल है, आपने y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रीअरेंज करनी है अपनी इक्वेशन। आपके पास ये क्या हो जाएगा बेटा? 2y इक्वल्स -7x + 10, y इक्वल्स -7x ओवर 10 ओवर 2 + 10 ओवर 2। इंडिविजुअल आपने ब्रेक डाउन कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आपके पास सिंपल क्या होती है? y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो ये जो आपके पास -7/2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कंप्लीटली ग्रेडियंट के बराबर होता है। आपके पास जो m है दैट इज इक्वल्स -3.5। ये आपके पास हो। अब पार्ट बी में कहता है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल वेल लाइन एल क्रॉसेस दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है। इक्वेशन आपके पास क्या है? 2y + 7x = 10 मेरे पास है। अब अगर मेरे पास, खुद सोचने वाली बात है कि अगर मेरे पास एक ऐसी लाइन है जो किसी एक्सिस पे क्रॉस करती है, वाई एक्सिस पे अगर क्रॉस कर रही है तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा 0। जीरो होती है, करेक्ट। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वी हैव द आंसर 2y + 0 = 10। सो y का आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0,5। अगर क्वेश्चन में होता कि लाइन एल क्रॉसेस, दूसरा सिनेरियो अगर होता लाइन एल क्रॉसेस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आप क्या करते? y की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने x का आंसर फाइंड आउट कर लेते। सही है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपने थोड़ा सा देखना होता है कि किस एक्सिस की बात हो रही है या किस पॉइंट की बात हो रही है जिसके जरिए जो है वो आपने अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन को सॉर्ट आउट करना है। हमारी इन्वेस्ट 2 लाख येन फॉर 3 years इन अ सेविंग अकाउंट पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट। द द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.8% फॉर द फर्स्ट ईयर। सो 2 लाख के ऊपर उसने जो है वो कितना किया है? 1.8। सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 1.8/100। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स, ये हो जाएगा आपके पास 1.8 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 0.018 टाइम्स 2 लाख। 0.018 टाइम्स 2 लाख विल गिव यू आंसर 3600। तो 3600 का आपके पास जो है वो इंक्रीज मिला। तो आप क्या करोगे? आफ्टर फर्स्ट ईयर इट विल बी 2,36,100। ये आपके पास इंक्रीज मिल गया, ठीक है। अब वो ये कहता है फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर इट विल बी X%। तो ये मेरे पास आफ्टर फर्स्ट ईयर दिस विल बी, ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी, ये आपके पास हो गई आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये आपके पास हो गई, ठीक है। फॉर द सेकेंड ईयर आपके पास क्या होगा? अगर सेकेंड ईयर की मैं वर्किंग करूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी माई वैल्यू 2,03,600। ये मेरे पास है, सही है। इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है क्योंकि उसने ये कहा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो ये मेरे पास है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर का मतलब क्या है? कि मैं ये कहता हूं फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट प्लस सेकेंड ईयर की इन्वेस्टमेंट प्लस थर्ड ईयर की इन्वेस्टमेंट, इन सब को आपने सम अप किया तो आपके पास जो आंसर है वो आखिर में क्या आ रहा है?
209,754, करेक्ट, राइट। But अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है यहां पर, फर्स्ट की आपके पास ऑलरेडी आ गई है, यू नीड टू वर्क आउट फॉर एक्स, तो आप क्या करोगे, इसे उठा के अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, व्हाट इट विल बी, सेकेंड एंड थर्ड की, वो आपके पास क्या है, 209,754 माइनस 203,600, व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, अब हमारे पास जब फर्स्ट ईयर की वैल्यू है, फॉर द सेकंड ईयर हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, 2036 जो आपकी ओरिजिनल है, इसके ऊपर आपके पास x% की वैल्यू जो है वो अप्लाई हो रही कंडीशन, सो इट विल बी 2036x आपके पास हो गया फॉर सेकंड ईयर। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के अंदर अगेन आपके पास x% का सिनेरियो जो है वो आपके पास अप्लाई हो रहा है, लेकिन नाउ द कंडीशन इज 2036x इंटू एक्स ओवर 100 आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2036, sorry, 2036 divided by 100 which will give you 20.36, so ये हो जाएगा 20.36x मेरे पास यहाँ पे हो गया। सो आपके पास यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट ईयर यू विल बी हैविंग दिस वन, आफ्टर सेकेंड ईयर ये आपके पास हो गई, और आफ्टर थर्ड ईयर जो है वो एक्स स्क्वायर ये आपके पास हो गई 20.36। ठीक है, इन सबको आपने सम अप करना है, और फाइनल उसने कहा आफ्टर थर्ड ईयर यू विल बी हैविंग 209,754, तो ये हो जाएगा आपके पास 20.36x प्लस 2036x प्लस 203600, ये सारी वैल्यूज आपने एडअप की, और इसका जो सम है वो टोटल कितने के बराबर, 209,754 के बराबर आपके पास आ जाएगा। profit ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आफ्टर फर्स्ट ईयर हो गई, उसके बाद सेकंड ईयर के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 आपने 2036 आपने, क्योंकि सेकंड ईयर की कंडीशन आपके पास है, तो ये हो जाएगा 4072, ये एक्स हो गया आपके पास, और थर्ड के लिए जो आपके पास सिनेरियो है दैट इज 20.36 का आपने सिनेरियो जो है वो यहाँ पे यूज किया। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होके, तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है 20.36x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4072x आपके पास हो गया, उसके बाद इनिशियल जो आपके पास आफ्टर फर्स्ट ईयर थी 203600 हो गया, इक्वल्स आपके पास किसके सम अप है, 209,754 के बराबर आपके पास ये हो गया। तो एक्स का जो आपके पास फाइनल आंसर जो है, जो एक्सेप्टेबल आंसर है वो आपके पास 1.50 जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है,